Good evening, sir. Okay. Good evening. Good evening, all of you. So today we are starting a very important crop, as well as it is very important tropical crop. That is papaya. It is known as Carica papaya. Belongs to family Caricaceae. Okay. It is having chromosome number, that is 2n is equal to 2x, and it is haploid, that is diploid, that is 18. So n is equal to 9. Okay. Haploid is, last time I asked question. Okay. So haploid will be 9, diploid will be 18. So here no different ploidy levels, only diploids. Okay. And the origin of papaya, it is tropical America. So it will come next. So you have very good information about papaya. You are very much familiar since it is tropical fruit crop. So papaya, it is also known as wonder fruit of tropics as well as subtropics. It is also known as tree melon. Okay, tree melon. Then it is also known as backyard fruit or breakfast fruit. So these are some common names of the papaya. So it is also known as wonder fruit or wonder fruit of tropics. It is among one of the 5 major fruit crops. So 5 major fruit crops, like worldwide as well as in India also. So worldwide, very important fruit crops are, first one worldwide comes means first one is banana, then mango, then citrus fruit we have, then we have grapes, after that papaya. And in that these are tropical and subtropical. So I'm not talking about temperate fruit crops. Okay. So in temperate fruit crops, you are familiar, very much aware about this apple. So apple is on first number. After that, pear, then peach. Okay, then walnut, almond. Okay, so these are very important temperate fruit crops. So likewise here, this papaya, if you are considering these tropical fruit crops or fruits which are we are taking in tropical parts of the country, or tropical part of the world, so papaya is very important fruit crops. So papaya can give you the income throughout the year, as well as it is remunerative fruit which can be grown in almost all part of the country. Okay, so even though with some or other modification we can take from a tropical, subtropical. Also, it can extend up to certain level. It is possible in temperate region also, but it is basically belongs to tropical. Okay. So it gives the maximum yield per unit. Okay, per unit means per hectare from plantation. So we are doing plantation with 1.8 into 1.8 or 2 into 2 meter. So after banana, okay, it is having the highest what is yield per hectare or per unit area. So almost you are getting minimum from indigenous cultivars also you can get up to 40 or 60. So if you have very high yielding variety, you can get the yield of somewhere it is reported 80 or 100 tons also per hectare. Okay, so it is having the yield next to banana, but other crops like mango, you don't have that much income. Okay, so mango maximum in high density planting also we are getting 20 tons per hectare, like that. So in banana it is there almost 40 to 50 tons per hectare. So likewise, this is next to banana. Okay. So banana, sorry, it is giving almost more than this. Okay. So after that comes it papaya. Okay. So mango and citrus solar comes later. Okay. So in general, grown as a fruit of, so it is very best suitable as a kitchen garden. So what some concept is there, that is kitchen garden or home garden or nutritional garden. So nearby our backyard of our home or some surrounding place will be available. Okay, so where there is scarcity of land, okay,
like especially some part in city area, as well as some states in India like Kerala. So where there is a scarcity of land, so there is concept of kitchen garden. Or so in other state also we are following this concept, that is kitchen garden. So nearby our surrounding, we are growing different type of horticulture crops. So not only fruits, it includes vegetable crops. Okay, fruit crops, vegetable crops, some medicinal, some ornamentals also come in that. So in that way, some small picture, okay, we are making. So in that, whatever our daily need of vegetables as well as fruit, we are trying to fulfill with that. So our daily requirement according to ICR, we should know. So what is our daily requirement of fruits as well as vegetable? So this is one basic question. Okay. So what is your basic knowledge, fruits as well as vegetable? What is daily requirement per capita or per individual? How much amount of fruits or vegetable we need to consume? So this is question for you. Anybody can answer. Okay. So ICMR, so Indian Council of 120 gram. 120 ग्राम, हाँ फ्रूट्स आप बोल सकते हैं, ठीक है 100 या 120 ग्राम, एक्चुअली 80 ग्राम मिनिमम हो तो सफिशिएंट है. सो आप बोल सकते हैं 100 to 120. ओके ठीक है. और वेजिटेबल का कितना है रिक्वायरमेंट, तो उसी के हिसाब से वेजिटेबल का भी बोल दीजिए. 140 to 160. नहीं, वेजिटेबल का देखिए ज्यादा है. वेजिटेबल का आप पढ़िए अच्छे से, 250 या 300 ग्राम आपको मिलेगा. ठीक है, कम से कम 250 चाहिए या 300. उसमें भी आपको सभी प्रकार के वेजिटेबल लेने हैं, जैसे कि लीफी वेजिटेबल हो, पल्सेस वाले वेजिटेबल हो, रूट वेजिटेबल्स हो. तो इसके हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें मैं डीप नहीं जाता. तो सभी प्रकार के वेजिटेबल उसमें चाहिए. और फ्रूट्स भी मतलब मान लो 100 ग्राम फ्रूट्स आपको, जो भी सभी प्रकार के आपको वाइटामिन ए टू वाइटामिन ई के तक आपको प्रोवाइड करे. बाद में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स, ओके, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको प्रोवाइड करे, एंटीऑक्सीडेंट्स आपको प्रोवाइड करे. दूसरा जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, स्टार्च हो गया. ओके, तो ये भी आपको प्रोवाइड करे. तो इसके लिए हम ये रिकमेंडेशन दिया गया. ठीक है. तो पपाया, इट कैन, सो पपाया इट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ vitamin A also after mango. Okay, so mango is having highest amount of vitamin A. After that papaya comes. Okay, so it is also, papaya can be also planted in any big orchard like mango orchard. If you have big mango orchard that is planted with 10 into 10 meter spacing, you can go for planting with papaya. So in between, so papaya, so spacing maximum you can give, so according to variety. Okay, normal spacing 1.8 into 1.8 meter. Okay, so in between interspaces you can take this papaya crop, because papaya having crop duration less than 5 years. Okay, so till your mango crops grows, it will take more than 4 years. Okay, to take its full vegetative growth, 4 or 5 years. Okay, so till that time you can take different, that is the system we are taking different intercrops. So papaya is the best suitable as the intercrop. So filler crop means this is one concept in one system of planting, that is Queen Coons system we are planting that. Filler crop means exactly what is meaning that if you have 4 crops, one square is there, at that square 4 crops at 4 corners of your square, and at exactly at the center of this 4 crop. So we are connecting this karna. So both triangle. So what is the exact center of this square? उस पर आप एक प्लांट लगा सकते हैं, तो उसको आप फिलर प्लांट बोलते हैं. तो फिलर प्लांट कोई भी हो सकता है, बनाना हो सकता है, पपाया हो सकता है, जिसका शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, जिसका लाइफ साइकिल बायनियल हो या 5 साल से कम हो. तो जब तक वो आपका मेन क्रॉप बढ़ता जाएगा, तब तक ये क्रॉप आपको यील्ड देता रहेगा. और जो आपने इनिशियल कॉस्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑर्चर्ड इस्टेब्लिश करने के लिए लगाया है, प्लांटिंग मटेरियल या पूरा प्लांटिंग करने के लिए, लैंड परचेस करने के लिए, वो आपको थोड़ा बहुत फुलफिल कर पाएंगे. तो ये यही कंसेप्ट है इंटरक्रॉपिंग या ये फिलर क्रॉप का. तो ये आपको इनिशियल ईयर इट विल प्रोवाइड यू अ सोर्स ऑफ इनकम. ओके,
So ये पपाया बेस्ट एग्जांपल है उसका एज अ फिलर क्रॉप, ठीक है। तो नेक्स्ट है कंपोजिशन एज वेल एज यूज। सो पपाया इट इज वेरी डेलिशियस, यू नो, delicious fruit, refreshing fruit, unique fruit values. So it is you can use as a table purpose, raw eating. Okay, you can prepare different post harvest value added products like jam, jelly, soft drinks, then ice cream, crystallized fruit, okay, candy, syrup, or fruit salad. So in some part of the countries or some places they are using as a immature papaya, that is in raw form. So if you are some it is having contraceptive properties if you are consuming it is in raw form. Okay, so it is we need to take care. Okay, okay. So otherwise other uses, their seeds are having very good medicinal properties. So उसके बाद पपाया, जो इमेच्योर पपाया होता है तो उसमें आप स्ट्रिप ये करके मार्किंग करके उसमें से एक लिक्विड या लैटेक्स में आपको मिल जाता है, ठीक है। तो वो लैटेक्स को हम पेपेन बोलते हैं, जो कि एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। सो इट इज वन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम यूज्ड इन सेवरल वे। सो पेपेन का यूज आप कैसे कर सकते हैं? इट इज डाइजेस्टिव एड है ये for treatment of ulcer as well as diphtheria. So in the industry you are using for shrinking of wools, degumming of natural silk as well as iron. Then tenderization of meat, मतलब मीट जो कि कुक करते हैं या बॉईल करते हैं तो इसमें आसानी पैदा करता है, जल्दी बॉईल होने में या पकने में, ठीक है। फॉर टैनिंग ऑफ लेदर्स, लेदर इंडस्ट्री में ये यूज होता है। देन ब्रेविंग इंडस्ट्रीज एज क्लैरिफाइंग एजेंट फॉर बियर, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स फॉर ट्रीटिंग इंटेस्टाइनल कैंसर्स, टेपवर्म, राउंडवर्म और किडनी डिसऑर्डर्स। सो पपाया लीव्स आल्सो हैविंग, so apart from this papaya leaves, that is green portion of papaya or papaya leaves, it is having one alkaloid that is known as carpine. So it is very important question also. Carpine alkaloid, it is present in all green parts as well as in seeds. So that is heart stimulant as well as it is having diuretic properties, treatment for amoebic dysentery. Okay. So apart from this papaya leaf juice, it is very useful in problems such as dengue or malaria to increase the platelet counts. So it is having very good properties. So same, that is carpine alkaloid only, it is useful for the treatment of your malaria or dengue, such problem you can. So it is having medicinal properties. So preparation of chewing gums, then cosmetic, the papers, adhesive material. So यहाँ पर भी ये यूज होता है। Then it is also used for extraction of oil from liver of tuna fish, ठीक है। सो ये सारी, तो ये दो प्रॉपर्टी, च्यूइंग गम प्रॉपर्टी ये पेपेन से बनता है, ठीक है। पेपेन, ये पेपेन का प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये ऑयल भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पेपेन से, ठीक है। दूसरा पपाया, इट इज वेरी न्यूट्रिशियस, यू नो, इट कंटेंट हाई क्वांटिटीज, हाई अमाउंट ऑफ विटामिन ए, ऑलमोस्ट 2020। सो इसका नंबर है 2020। वो यूनिट्स है, इंटरनेशनल यूनिट्स है, जिससे कि मैंगो में 4500 टू 5000 इंटरनेशनल यूनिट। तो इसके नीचे वाला सेकंड रैंकिंग आता है, वो पपाया ही है फ्रूट, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा विटामिन ए या कैरोटीन आपको मिल जाता है। तो इट इज एसोसिएटेड विद कैरोटीन, बट द येलो पिगमेंट इन पपाया इट इज नोन एज कैरिकक्सैंथिन। सो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। Yellow pigment in papaya, it is known as carycoxanthin. So apart from this, you can get vitamin C, riboflavin, niacin, good source of calcium, then phosphorus, then iron,
fat as well as carbohydrates as well as its highest calorific मतलब आप it is a good energy source और ज्यादा से ज्यादा आपको कैलोरीज पपाया कंज्यूम करके मिल जाते हैं, ठीक है। So apart from this pepen, raw fruit also can be used for extraction of this pectin, okay. So pectin भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। So pectin is generally extracted by using alcohol precipitation method, ठीक है। So it is used in food industry as flavoring, okay, extract as well as emulsifying agent, ठीक है। तो यहाँ पे पेपेन भी 50% मैच्योरिटी के बाद आप कर सकते हैं और बाद में आपको पेक्टिन भी। सो पेक्टिन एक्चुअली गावा ये फ्रूट पेक्टिन का मेजर सोर्स है और दूसरा पपाया। तो पेक्टिन इसका इम्पोर्टेंट एक प्रोडक्ट जो कि जेली बनाने के काम में आता है। तो या पहली जो जेली बनाने के काम में अच्छा प्रोडक्ट काम में आएगा वो है पेक्टिन। तो जिस फ्रूट्स में पेक्टिन पाया जाता है जैसे कि फिग है, गावा है, ये पपाया है, तो इससे अच्छी तरह की जेली बनाई जा सकती है, ठीक है। दूसरा है टूटी फूटी, ये प्रोडक्ट है पपाया बीट्स, इमेच्योर बीट्स आर फर्स्ट सोक्ड इन ब्राइन सॉल्यूशन देन बॉइल्ड इन शुगर सिरप and immersed in sugar syrup for 45 to 60 hours with fermented colors। ये हो गया टूटी फूटी, ये भी एक पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है पपाया से। Apart from this, you are preparing jam, candy slice, beverages, toffees, drinks, soft drinks. Okay, so coming to origin and distribution, papaya, it is the largest producer of papaya in the world is India. India is second largest after Brazil. Okay, so it is South American country, Brazil को पता है। So it is a fruit native to tropical America या correctly आप बोल सकते हैं मेक्सिको, ठीक है। मेक्सिको भी कहीं आपको मिलेगा या ट्रॉपिकल अमेरिका भी लिख सकते हैं आप, ठीक। तो दूसरा कमर्शियल ग्रोन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक ऑस्ट्रेलिया, हवाई, ताइवान, पोर्टो रिको, especially Peru, Florida, Texas, California, South Africa, Pakistan, Bangladesh. So especially a tropical part of the world, okay. So in India it was introduced by Portuguese people in 1611। तो जैसे कैशू इंट्रोड्यूस किया, रबर इंट्रोड्यूस किया, कॉफी इंट्रोड्यूस किया, कोको इंट्रोड्यूस किया, वैसे ही ये पोर्तुगीज लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस, जैसे एप्पल भी इंट्रोड्यूस किया पोर्तुगीज लोग, वैसे ही पपाया यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया 1611 में। So it is now it is grown in major area you can find in Karnataka, then Bihar, Kerala, Tamil Nadu, Assam, Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh as well as Madhya Pradesh, ठीक है। So coming to climate as well as soil, papaya it belongs to tropical fruit crop. According to its climatic requirement, it is susceptible to some frost, okay. तो जहाँ पे बहुत frost होती है, especially सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया में फ्रॉस्ट ज्यादा रहती है, तो वहाँ पे ये इसके लिए ससेप्टेबल है, ठीक है। तो इट रिक्वायर्स वेरी वार्म एज वेल एज ह्यूमिड क्लाइमेट, ट्रॉपिकल एरियाज, इट कैन बी कल्टिवेटेड अप टू द एलिवेशन। तो यहाँ पे हाइट कितना है 1000 to 1200 मीटर अबव मीन सी लेवल। So it thrives well at temperature between 38 to 44। So बहुत ज्यादा टेम्परेचर रेंज में ये सर्वाइव करता है, पर ऑप्टिमम है जो कि 22 to 36 है। Day temperature of 35 it is good, as well as 25 degrees centigrade night it is very suitable। So papaya grows well under well drained soil with a good pH of 6 to 7, okay। थोड़ा सा अल्कली लगता है इसको, न्यूट्रल टू अल्कली। So it prefers somewhat fertile soil, deep clay soil, calcareous soil, rocky, deep clay, fertile soil, deep clay as well as calcareous as well as rocky soils are not suitable, okay। तो ये soil को avoid कर सकते हैं, पर अच्छा fertile soil होना चाहिए, ठीक है। दूसरा different species and varieties है, जैसे कि Carica contains different 48 species of which only 3 or 4 species are very important, okay। तो वही आपको याद रखने हैं।
तो important species are so Carica papaya. It is commercial species as well as polygamous. Polygamous means different forms of sex. मतलब उसमें different तरह के आपको plants मिलेंगे, जैसे कि male plants अलग मिलेंगे, female plants और hermaphrodite. So 3 टाइप के plants आपको मिलेंगे. दूसरा Carica monoica. So it is monoecious forms suitable for mild climate as well as found in Amazon basin. Carica cadamarcensis. It is species belongs. It is mountain papaya. Okay, suitable for cold climate. Carica gracilis. It is ornamental one. Cubensis mountain papaya. Carica dodecaphylla. Okay, Charactia. Okay, Carica gordosiana. ये भी है. ठीक है, तो पहले 4 यहाँ पे बहुत 3 वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बाकी एक तो ऑर्नामेंटल नेचर है या फिर स्टिपुलेटा है, क्वार्सिफोलिया है, स्टिपुलेट है, कैरिका स्टिपुलेट. तो ये डिफरेंट स्पीसीज. ये देखिए कैरिका मोनोइका, कैरिका पेंटागोना, कैरिका गौडोशियाना. कमिंग टू वैरायटीज, so honeydew, it is very important variety of Kerala. It is from South India. So it is very delicious, very sweet variety. Less percentage of male plants. Okay, and breeds true to type from seed. Okay, true to type आपको seeds पैदा करता है. इसका एक स्पेशलिटी है from seeds. Okay, semi tall type variety bears fruit low on the trunk but heavily. Okay, बहुत सारे fruits इसको आपको मिल जाते हैं और ज्यादा मात्रा में आपको रहते हैं. मतलब इसका फ्रूट यील्ड बहुत ही ज्यादा रहता है. दूसरा, दिस वैरायटी इज पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया. इट इज आल्सो नोन एज मधुबिंदु भी इसको बोलते हैं. दूसरा है सनराइज सोलो. सोलो मतलब ये क्या है, वन फ्रूट, बहुत छोटा फ्रूट होता है और एक आदमी एक फ्रूट आसानी से, जिसका मतलब एक आम जैसी साइज का रहेगा. नहीं तो पपाया का फ्रूट बहुत ही बड़ा होता है जो कि एक आदमी पूरा नहीं खा सकता है, क्योंकि उसमें कैलोरीज या हीट यूनिट्स भी ज्यादा रहते हैं. तो एक आदमी पूरा फ्रूट्स खाना ये एक्सपेक्टेड नहीं है. ठीक है, 2 या 3 आदमी ही मिलकर एक बड़ा पपाया खा सकते हैं, या थोड़े ज्यादा लोग हैं. ठीक है, तो वो सही रहता है. तो इसका सोलो फ्रूट मतलब इंडिविजुअल, जैसे कि एक आम है वैसे एक फ्रूट लेकर हम खा सकते हैं. तो एक गाइनोसियस वैरायटी है. इट इज फ्रॉम हवाई. स्मॉल साइज फ्रूट, पायरीफ्रॉम, पियर शेप का होता है. येलो ऑरेंज पल्प होता है. इसका कीपिंग क्वालिटी अच्छा होता है. दूसरा कुर्ग हनी ड्यू. ये भी वैरायटी हनी ड्यू से सिलेक्शन है ये वैरायटी एक्चुअली. ये गाइनोडायोसियस वैरायटी है. मतलब इसमें 2 तरह के फॉर्म आपको मिलेंगे. जैसे एक गाइनोसियम, मतलब एक आपको पूरा फीमेल प्लांट्स मिलेंगे और दूसरा आपको हर्मेफ्रोडाइट टाइप मिलेंगे. मतलब इस इसमें जो भी कुछ आपको सीड है वो 2 तरह के आपको मिलेंगे, जिसमें एक फीमेल जो सीड्स वो फीमेल प्लांट्स पैदा करेंगे और दूसरे सीड्स रहेंगे जो कि हर्मेफ्रोडाइट प्लांट्स पैदा करेंगे. ठीक है, तो ये मतलब वैरायटी अच्छा है कि आपको ज्यादा मेल प्लांट्स यहाँ पर, मेल प्लांट्स तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये वैरायटी बहुत ही प्रेफर करते हैं. सो पपाया कल्टीवेशन में आजकल गाइनोडायोसियस वैरायटी ही ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग, क्योंकि गाइनोडायोसियस वैरायटी में क्या होता है, आपका सीड मटेरियल वेस्ट नहीं जाता. ठीक है, क्योंकि आपको प्लांटिंग में अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है, अगर हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स है तो आपको पोलन सोर्स मिल जाता है उसी प्लांट्स में से, पोलन ग्रेन्स. नहीं तो अगर मेल प्लांट्स, अगर डायोसियस वैरायटी है, डायोसियस मतलब मेल एंड फीमेल प्लांट्स सेपरेट मिलेंगे आपको, तो उस वैरायटी में 10% मेल प्लांट्स लगाना ऑर्चर्ड में रिकमेंड किया गया है. मतलब आपके 100 प्लांट्स अगर है तो उसमें से 90 प्लांट्स आप फीमेल ले सकते हैं और 10 प्लांट एज ए पॉलिनेटर आपको मेल प्लांट कंपलसरी रखने ही है. नहीं तो आपका पॉलिनेशन अच्छे से नहीं होगा और आपका फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अफेक्ट होगा और आपको अच्छा यील्ड नहीं मिलेगा. तो ये वैरायटी, जैसे कि अगर आपने
गाइनोडायोसियस वैरायटी ली तो आप जो भी कुछ प्लांट करेंगे उसमें आइदर थोड़े प्लांट तो फीमेल रहेंगे या थोड़े प्लांट हर्माफ्रोडाइट रहेंगे। तो आपको फीमेल प्लांट को हर्माफ्रोडाइट प्लांट के हर्माफ्रोडाइट प्लांट के जो फ्लावर्स है, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स है, उससे आपको पोलन मिल जाएंगे और वो पॉलिनेशन फीमेल प्लांट्स की पॉलिनेशन और फ्रूट यील्ड दे सकेंगे। और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स तो या तो सेल्फ पॉलिनेशन है या तो क्रॉस पॉलिनेशन से फ्रूट पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन उसका होगा और फ्रूट यील्ड भी आपको मिलेगा। मतलब यहाँ पे कोई प्लांट आपका वेस्ट नहीं जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अगर डायोसियस में क्या होता है, अगर मान लो आपने प्लांटिंग किया और ज्यादा आपको मेल प्लांट्स दिखाई दिए, मतलब आपको 10% ही चाहिए, अगर वो मान लो 20% या 25% भी हो गए तो एक्स्ट्रा मेल प्लांट्स तो किसी काम के ही नहीं है, तो उनको आपको हार्वेस्ट करना, उसको आपको काटना पड़ेगा। वह रखने से कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि वो तो आपको फ्रूट यील्ड देंगे ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी बात है यहाँ पे। तो दिस variety produce no male plants, so only female as well as hermaphrodite plants. So plants are either hermaphrodite or female. So fruits are born on female plants, almost seedless. Okay, जो female plants पे वो ऑलमोस्ट सीडलेस रहते हैं और उनको एक्सीलेंट क्वालिटी के रहते हैं। ठीक है, और हर्माफ्रोडाइट में भी आपको फ्लावर मिल जाते हैं। ठीक है, फ्लावर्स और फ्रूट्स आपको मिल जाते हैं। तो वाशिंगटन है दूसरा। वाशिंगटन प्लांट्स आर वेरी विगरस, स्टेम्स, लीफ स्टॉक्स विथ पर्पल टिंच होता है। फ्रूट्स भी अच्छे क्वालिटी के रहते हैं। मीडियम टू लार्ज फ्रूट्स रहते हैं, राउंड टू ओवेट रहते हैं, स्वीट पल्प, पल्प ऑरेंज कलर का और वेरी गुड फ्लेवर रहता है उसको। So some improved varieties as well as strains from Tamil Nadu Agricultural University यहाँ पे दिए गए हैं, जिनको तमिलनाडु जो भी कुछ वैरायटी रिलीज करता है उसको को लिखते हैं। को मतलब क्या है, कोयम्बतूर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो को है तो को 1-2 इन्होंने बहुत सारे वैरायटी को 1-2 आपको को 7 तक वैरायटीज है। तो आप जस्ट आप क्या कर सकते हैं इसमें, थोड़ा सा एक कोई हाइब्रिड है तो उसका पेरेंटेज आप याद रख सकते हैं और यील्ड, तो ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। और कोई अगर डॉर्फ वैरायटी है या ससेप्टिबल रेजिस्टेंट वैरायटी किसी के लिए तो आप वो भी याद रख सकते हैं। तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में कुछ वैरायटी यूज होती है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा देख लीजिए, ये सिलेक्शन वैरायटी है, मास सिलेक्शन से की है, रांची वैरायटी से कोवन सिलेक्ट किया है। ये डॉर्फ टाइप है। ठीक है, इसका यील्ड भी अच्छा 100 to 120 टन्स पर हेक्टर अच्छा यील्ड आपको मिल जाता है इसका। तो ठीक है, दूसरा कोटू है, ये डायोसियस टाइप है, मतलब इसमें मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर सेपरेट। सेमी डॉर्फ टाइप है, मीडियम सेमी डॉर्फ टू मीडियम टॉल टाइप है। ठीक है, तो टेबल और पेपेन एक्सट्रैक्शन के लिए अच्छा है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, पेपेन एक्सट्रैक्शन कौन सी वैरायटी है आपको, तो कोटू आपको लिखनी पड़ेगी। कोटू है यहाँ पे, अच्छी वैरायटी है। तो इट यील्ड्स 5 to 6 ग्राम ऑफ प्रोपेन पर प्लांट। दूसरा है को 3, तो ये हाइब्रिड है, को 2 इंटू सनराइज सोलो। गाइनोडायोसियस टाइप है जिसमें आपको फीमेल और हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स आपको मिल जाते हैं। तो इसका यील्ड भी आपको अच्छा है, टेबल पर्पस 100 to 220 टन्स पर हेक्टर, बहुत ही अच्छा यील्ड है इसका। को 4 है, ये भी हाइब्रिड है बिटवीन कोवन एंड वाशिंगटन। कोवन एंड वाशिंगटन, इट इज अगेन डायोसियस टाइप। डायोसियस मतलब मेल एंड फीमेल टाइप इसमें रहेंगे। तो मीडियम टॉल प्लांट्स है विथ लार्ज फ्रूट, 1 to 1.5 kg ईच फ्रूट वेट। सो यील्ड इसका 100 to 120 टन्स पर हेक्टर रहेगा। दूसरा है को 5, ये सिलेक्शन है वाशिंगटन वैरायटी से। सो ये भी अच्छा है पेपेन एक्सट्रैक्शन। सो यही मैक्सिमम पेपेन यील्ड देता है आपको एज कम्पेयर टू कोटू से भी। कोटू भी है और ये भी आपको लगभग 14 to 15 ग्राम ऑफ पेपेन पर फ्रूट आपको देगा। और यील्ड इसका 100 to 220 टन्स पर हेक्टर रहेगा। ठीक है, तो बाद में है को 6, ये भी सिलेक्शन है, पूसा मैजेस्ट्री वैरायटी है। पूसा मैजेस्ट्री वैरायटी IRS से रिलीज वैरायटी है पूसा। तो इसका यील्ड आपको 80 to 100 फ्रूट्स मिलेंगे पर प्लांट। पेपेन यील्ड भी इसका अच्छा है।
तो 7.5 to 8 ग्राम पेपिन के लिए प्रेफर की जाती है। Yielders 890 kg of dry pepin per hectare and yields 100 to 220 tons per hectare, जो पपैया का फ्रूट्स का यील्ड है। तो ये भी कोसेओनी गाइनोडायोसिस टाइप है, तो मल्टीपल क्रॉस है यहाँ पे, जो कि CP 75, तो ये CP 75 बनाया है, ये प्रोजेनी मिली है पूसा डेलिसियस को3 से, और इससे जो CP 75 प्रोड्यूस हुआ तो उसको कुर्ग हनी ड्यू से फिर क्रॉस किया, तो इसको हम मल्टीपल क्रॉस या ट्रिपल वे क्रॉस भी बोलते हैं। ठीक है, 3 वैरायटी का क्रॉस होता है, तो मतलब 2 वैरायटी का क्रॉस करके उसका जो ऑफस्प्रिंग प्रोजेनी मिल जाता है उसका और किसी वैरायटी के साथ क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल वे क्रॉस। 160 to 180 टन्स पर हेक्टर। तो ये रहे डिफरेंट वैरायटीज आपके। तो इसमें से जो भी कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी है आपको, दूसरा वैरायटी है पूसा इट इज फ्रॉम बिहार। ओके, पूसा बिहार। तो यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी है, जैसे कि पूसा डेलिसियस है, एक गाइनोडायोसिस टाइप है। ठीक है, Sir, papaya fruit have any seedless variety or not? हाँ बोलिए। Sir, papaya have any seedless variety or not? हाँ, सीडलेस वैरायटी है, ये यहाँ पे दिया है जो कुछ या गाइनोडायोसियस या वैरायटी है वो ज्यादातर तो सीडलेस रहती है, जैसे कि ये अभी पॉपुलर हाइब्रिड है जिसको हम ये बोलते हैं ताइवान 786 या फिर रेड लेडी बोलते हैं, जो भी ये अभी फार्मर्स उसका ही कल्टीवेशन ज्यादा कर रहे हैं। ये प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड है, तो ये ऑलमोस्ट आपको सीडलेस है। ठीक है, और भी कुछ वैरायटी Yes, है गाइनोडायोसिस टाइप से ये है, तो वो भी सीडलेस है। ठीक है, तो ये तो पूरा सीडलेस है, पूसा सॉरी रेड लेडी वैरायटी बताया है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर पर वो फार्मर्स ज्यादा क्योंकि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर हाइब्रिड भी। ठीक है, तो ये पब्लिक सेक्टर हाइब्रिड हम तो पहले पढ़ते हैं, वो भी देखेंगे, उसका भी रेफरेंस आता है प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड का। तो यहाँ पे पूसा डेलिसियस है, यहाँ पे दूसरा ये भी गाइनोडायोसियस है, पूसा मेजेस्ट्री ये भी गाइनोडायोसियस है, टिपिंग क्वालिटी इसका अच्छा है। पूसा जायंट है, जायंट मतलब वो उससे बिग साइज फ्रूट्स रहता है, तो सुटेबल फॉर कैनिंग इंडस्ट्रीज। पूसा डॉर्फ है, पूसा डॉर्फ मतलब डॉर्फ वैरायटी रहेगी। ठीक है, सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग एज वेल एज होम गार्डन्स। पूसा नन्ना है, तो ये डायोसियस टाइप है। ठीक है, तो किचन गार्डन या न्यूट्रिशनल गार्डन या पॉट प्लांटिंग के लिए सुटेबल है। 60 to 65 टन्स पर हेक्टर है। तो apart from this, some variety like Pantnagar University developed like Pant 1, 2, 3. Okay, तो ये भी कुछ वैरायटी है, कुछ Pant 1, 2, 3। तो IHR भी कुछ वैरायटी हाइब्रिड्स यहाँ पे डेवलप किया है, जैसे कि ठीक है, तो कुर्ग हनी ड्यू ये भी पहले हमने देखा। कुर्ग हनी ड्यू ये भी सिलेक्शन है, ये तो हाइब्रिड नहीं है, सिलेक्शन था, वो भी IHR से है। ठीक है, दूसरा सम इम्पोर्टेंट लाइक IHR 39 सनराइज सोलो इनटू पिंक स्वीट फ्लैश, IHR 57। सो नाउडे ताइवान हाइब्रिड्स और ताइवान उसको 706 ताइवान कंट्री से है, तो ये आपको बहुत अच्छा ईल्ड आजकल दे रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत ही पॉपुलर है अमंग द फार्मर्स, इसका कल्टीवेशन ज्यादा हो रहा है। तो ये भी गाइनोडायोसिस टाइप है। ठीक है, ताइवान इसको रेड लेडी भी बोलते हैं। ये डिफरेंट वैरायटीज है। So coming to propagation, papaya, it is as you know, it is papaya. So these are herbaceous crops. Okay, so papaya mostly we are cultivating by the way of seed propagation. So seeds should be collected from healthy ripe fruits. So जो पूरा पका हुआ फ्रूट है, तो उससे हम सीड्स ऑब्टेन करते हैं।
तो ऐसा फ्रूट या प्लांट भी पूरा पेस्ट एंड डिसीज या हेल्दी होना चाहिए, न्यूट्रिशियस, माल नरिश नहीं होना चाहिए, अच्छी जगह से होना चाहिए, ऐसा आप सिलेक्ट कीजिए। उससे आप उसके पूरे मैच्योर 90 या पूरा 95 पूरा पकने दीजिए उसको पेड़ पर, वो कलेक्ट कीजिए, उससे आप सीड एक्सट्रैक्ट कीजिए। तो सीड्स शुड बी रब्ड विथ ऐश। ओके, तो सीड पर एक म्यूसिलेजिनस या कोटिंग रहता है, उसको एरिल या सर्कोटेस्टा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो जर्मिनेशन आपका दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो ये कोटिंग को आप ऐश की, यू कैन रब विथ हेल्प ऑफ ऐश, वुड ऐश, एंड यू कैन रिमूव दैट सब्सटेंस। ओके, सो और आप उसमें इसके बाद इमीडिएट प्लांटिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा ड्राई करके, या दूसरा एक वे है, इसके सीड्स आप स्टोर भी कर सकते हैं 45 डेज इन एयर टाइट कंटेनर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी आप जब स्टोर करने की जरूरत है या किसी जगह भेजने की जरूरत है तो ये भी कर सकते हैं। सो बिफोर सोकिंग द सीड्स, आपको सोकिंग, you need to soak the seeds in 100 ppm GA solution to enhance the germination percentage, ठीक है। तो जर्मिनेशन आपको अच्छा मिलने के लिए आप सोकिंग कर सकते हैं। दूसरा एक सोइंग आप कैसे करेंगे? सो सीड्स यू कैन सो इन पॉलीबैग्स। सो पहले तो आपको ये कर सकते हैं पपाया, क्योंकि ये बहुत ही हर्बेसियस प्लांट है, आप डायरेक्ट इसको प्लांटिंग नहीं कर सकते डायरेक्ट प्लेस पर। तो पहले तो आपको सीडलिंग ऑब्टेन करनी पड़ती है, तो ये नर्सरी होती है, तो नर्सरी में आप उसको सीडलिंग अच्छे से ऑब्टेन कीजिए, उसका लगभग एक 40 दिन तक उसका केयर कीजिए, और बाद में वो मतलब पॉली बैग में आप तैयार कीजिए आपके प्लांटलेट्स, और उसको परमानेंट प्लेस पे शिफ्ट कीजिए। यही एक अच्छा रास्ता है जब आप सीड से करते हैं, ठीक है। दूसरा भी रास्ता है जिसको हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं, वो आगे आएगा रेफरेंस में, वो भी आजकल ट्रेंड में है, जैसे कि बनाना में हो गया टिश्यू कल्चर, पपाया में भी चल रहा है टिश्यू कल्चर, ठीक है। सो सीड्स कैन बी सोन इन पॉलीबैग्स। तो पॉलीबैग्स का साइज दिया है, तो इसमें आप ठीक है सो कीजिए। सो 6 वीक प्रायर टू ट्रांसप्लांटिंग, मतलब पूरा 6 वीक आपको वो पॉलीबैग में रखना है। तो पॉलीबैग का मीडिया कैसे होना चाहिए? उसमें 2% फॉर्मेलिन सॉल्यूशन है। तो 4 सीड्स आप प्लांट कीजिए पॉलीबैग्स में, इफ इट इज द डायोशियस वैरायटी। डायोशियस वैरायटी मतलब क्या होगा? आप जो भी कुछ 4 सीड प्लांट्स करेंगे तो उनमें प्रोबेबिलिटी क्या रहेंगी? आइदर 4 में से 2 सीड मेल हो सकते हैं, 2 सीड फीमेल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कभी कभी चारों मेल भी आ सकते हैं, कभी कभी 3 मेल आ सकते हैं, 1 फीमेल आ सकता है। तो ऐसा ही है, तो यहाँ पे मेल फ्लावर्स मिलने की ज्यादा संभावना होती है, इसलिए ज्यादा सीड प्लांट करने की जरूरत होती है। बट इन केस ऑफ hermaphrodite variety you can plant only 2 number of seeds in polybags, क्योंकि आइदर एक तो फीमेल प्लांट मिलेगा, नहीं तो hermaphrodite मिलेगा, या फिर बेस्ट कोई होगा नहीं। तो डायोसिस में यही एक दिक्कत होती है, अगर ज्यादा मेल प्लांट्स आ गए तो वो वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ कुछ फ्रूट यील्ड आपको नहीं देंगे, सिर्फ वो पोलन्स आपको प्रोड्यूस करेंगे पॉलिनेशन और फर्टिलाइज पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। Yes, तो sir. सीड्स, Sir, we have less than 1 minute. yeah. We'll continue up to 8 o'clock, no problem. So Yes. I will finish this, okay. So let it